ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਕ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे शो में। थैंक यू हनी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हिंदी पंजाबी साड़ी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मिक्स ਗੱਲਬਾत करेंगे। तो विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो एक्सपीरियंस है मोर्टगेज इंडस्ट्री का है ना, पिछले 2-3 साल में मोर्टगेज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में आई है। बेशक इंटरेस्ट रेट्स की बात कर लें या फिर हाउसिंग मार्केट की बात कर लें कि बहुत ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई, तो मोर्टगेज जो है आपकी, उसमें क्या ज़्यादा चेंजेस आई हैं पिछले 2-3 सालों में? सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, काफ़ी टाइम तक हमने देखा कि वो 3% से भी नीचे था जी, काफ़ी टाइम तक जी। अब जो रेट है वो अराउंड 6% है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जी। इसकी वजह से मॉर्गेज क्वालिफिकेशन में काफ़ी डिफरेंस आया है लोगों के। जो मॉर्गेज पहले जिस अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते थे, अब उस अमाउंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन उसमें एक चीज़ और अच्छी हुई है कि यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ की जो प्राइजेस हैं वो थोड़े कम हुए हैं जी, तो वो मोर अफोर्डेबल हो गया है। इनफैक्ट एडमिंटन की जो मार्केट है इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है पूरे कनाडा में, राइट। और दैट इज़ अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, क्योंकि यहाँ के जो प्राइस हैं, प्रॉपर्टी प्राइस बहुत कम है जी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह बढ़ा है, ऑल ओवर कनाडा बढ़ा है जी, लेकिन जो इम्पैक्ट बाकी प्रोविंसेस में हुआ है, जैसे ओंटारियो BC में, जी, उनका ज़्यादा है जी। तो मैं शुरुआत में जो करूँगा क्वेश्चंस की, जो हमारे न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, जो स्पेशली अब नए, जो चाहे आउट ऑफ कनाडा से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ एडमिंटन में या एल्बर्टा में, सबसे पहले तो वो जो आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी यहाँ पे फैमिली आती है तो वो चाहता है कि मैं अपना घर लूँ, तो उसकी या तो जो अभी आने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया में भी बैठे हैं, दूर दूर अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, जो कनाडा में आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में प्लान कर रहा है कनाडा आने के लिए, तो उनके लिए क्या ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि वो आके अपना घर ले सके, या उनको क्या ऐसी ऑप्शन हो सकती है? क्योंकि कई दफ़ा लोगों को होता है कि जब तक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी मैं अपना घर नहीं ले पाऊंगा, कम से कम 1 साल या 2 साल मुझे पहले काम करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी कनाडा में आके, तो ही मैं काम कर सकता हूँ, तो ही मैं घर ले सकता हूँ। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। या उसके लिए बेसिकली प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। इवन दो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनकी यहाँ कनाडा में, तब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं मॉर्गेज के लिए। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम वेयर क्लाइंट्स कैन क्वालिफाई विद एज लिटिल एज 5% डाउन पेमेंट एंड विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री। सो दिस इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्रेडिट हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को क्वालिफाई करने के लिए मॉर्गेज की। वो ये एक जो प्रोग्राम है उसमें आप 5% डाउन पेमेंट, इवन अब शुरू हो गया गिफ्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली शुरू हुआ है कि पहले जो 5% था वो आपकी खुद की सेविंग्स होनी चाहिए थी,
Okay. पर अब जो है वो अलाउ कर दिया उन्होंने कि आप गिफ्ट भी ले सकते हैं। Okay. गिफ्टेड होनी चाहिए अपने किसी इमीडिएट रिलेटिव से, जैसे कोई पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, उनसे होना चाहिए। राइट। वो आप डाउन पेमेंट यूज कर सकते हैं। 3 महीने की आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको यहाँ पे। Right. और क्रेडिट हिस्ट्री आप कि यहाँ अगर नहीं बनी है तो आप कनाडा से, इंडिया से जैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आप बना सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास इंडिया में। इंडिया में तो दिस इज Okay. समथिंग व्हिच वी कैन एडवाइज क्लाइंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा कि वहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लें। अपने Okay. वहाँ पे 1-2 साल की उनकी जो क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। वो एक Okay. क्रेडिट रिपोर्ट वहाँ से भी जनरेट हो सकती है। राइट। वो क्रेडिट रिपोर्ट ऑनलाइन है, वो अवेलेबल, जी। वो यहाँ हम यूज कर सकते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए। तो उससे उनका क्वालिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। रिसेंट अगर वो आते ही अपना वो क्रेडिट पॉइंट्स अपने शो करें हाँ। तो उनके लिए भी मॉर्गेज की ऑप्शंस हो सकती वो है। क्वालिफाई कर सकते हैं Right. एज लिटिल एज 3 मंथ्स टाइम। राइट। 3 महीने यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी उनको। Right. और 5% डाउन पेमेंट Right. प्लस वो क्रेडिट हिस्ट्री हम यूज करके उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 5% जो आपने बताया कि 5% जो जैसे पहले होता था कि 5% आपके खुद की सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए, वो भी हम गिफ्टेड मनी एज ए यूज कर सकते हैं डाउन पेमेंट। दैट्स करेक्ट। राइट। वो गिफ्टेड मनी सर कहाँ से ले सकते हैं? जैसे एक तो होता है ना कि मैं अपने पेरेंट्स से लूं, ब्रदर से लूं, सिस्टर से लूं, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि मैं गिफ्ट किस से ले सकता हूँ? हाँ, ब्रदर से, सिस्टर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इवन चिल्ड्रन, बच्चों से भी ले सकते हैं। ओके। हाँ। तो वो कहीं से भी चल सकता है। वो Right. इनमें से किसी से भी चल सकता है। हाँ, ओके। राइट। तो वो किसी भी कंट्री से हों, डजंट किसी मैटर, भी अगर country- बाहर किसी कंट्री में भी हैं ओके। तो भी वो गिफ्ट वहां से आ सकता है। लाइक ये बहुत बड़ी मतलब कि एक खुशखबरी भी है, एक हाँ। अच्छी बात भी है कि कोई भी नया मूव कर रहा है कनाडा में तो आते ही वो अपना 2-3 महीने के काम के बाद अपना जो है घर ले सकता है। हमें अब 1.5-2 साल जैसे लोगों को होता है कि मैं जाके रेंट पे करूंगा, रेंट इतना, क्योंकि रेंटल मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ी है, रेंट इतना पे करने की जो ऑप्शन है उसकी आप उसको आप घर ले सकते हो, अपना मॉर्गेज पे कर सकते हो। तो सर ये तो न्यू इमिग्रेंट्स, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अभी रीसेंट आ चुके हैं, अब वो सोचते हैं कि मैं अब रेंट, अगर मैं $1200 $1500 मैं रेंट पे कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं अपना घर ले लूं, तो उनके लिए अभी क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? वो कैसे घर ले सकते हैं? उनके लिए भी सेम ऑप्शंस हैं, 5% डाउन पेमेंट और क्रेडिट हिस्ट्री। अगर उनको 5 साल से ज्यादा हो गए कनाडा में तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री वो नॉर्मली बैंक चेक करता है। Okay. अगर वो विद इन 5 ईयर्स आए हैं तो फिर अंडर न्यू टू कनाडा प्रोग्राम्स गाइडलाइंस जो हैं उसके अंदर वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोग हैं या 5 साल हो गए हैं उनको, उन लोगों के लिए अगर लेट्स से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो उनकी रेंटल पेमेंट हिस्ट्री भी हम यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करते, उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड ठीक नहीं है, कहीं नोट नहीं यूज करते, क्रेडिट नहीं यूज करना है, Right. हमें सारा कुछ कैश लेना है, डेबिट से लेना है जी। तो उस केस में उन लोगों के लिए अगर रेंटल पेमेंट और बिल पेमेंट हिस्ट्री है उनकी, Right. तो वो हम यूज कर सकते हैं Right. इन ल्यू ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तो Right. ऐसे ऑप्शंस हैं। एक चीज और मैं यहाँ टच करना चाहूंगा कि जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ पीआर परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, वो वर्क परमिट होल्डर्स के लिए भी वो प्रोग्राम है। लेकिन सर ये पीछे अगर मैं शायद बात करूं 1 साल या 1.5 साल पहले एक जैसे न्यूज आई थी कि जो वर्क परमिट पे है उनको अभी बैंक लोन नहीं देगा, बैंक मॉर्गेज नहीं देगा, क्या ये चीज चेंज हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, ये ऐसा जी। हुआ था जी। लेकिन वो चेंज हो गया है लकीली। अब जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं वो Okay. भी क्वालिफाई कर सकते हैं विद द सेम क्राइटेरिया, सेम गाइडलाइंस एज न्यू इमिग्रेंट्स ऑन पीआर। लाइक जो पीआर है या जो वर्क परमिट, बात है कि जो वर्क परमिट पे है वो भी मॉर्गेज ले सकते हैं, अपना घर बाय कर सकते हैं, वही 5% दे के 10% दे के वो भी क्वालिफाई करेंगे जिस हिसाब से क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। एक सर मेरे मन में और क्वेश्चन है कि जैसे मोस्टली अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के नाम पे घर होता है, अगर वो सोचता है जैसे वाइफ के नाम पे वो घर लेना चाहता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहता है या फिर सेकंड होम लेना चाहता है, तो वाइफ, जैसे आपने बोला कि मोस्टली कई वाइफ अब वर्किंग नहीं होती या फिर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? सपोज वो, अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने एक घर लेना है, ठीक है जी, अपनी वाइफ के नाम पे लेना है, और लेकिन उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अभी वो कोई काम नहीं कर सकती, तो वो कैसे हम वर्कआउट करेंगे? ये जो गाइडलाइंस हैं जो मैंने बताई आपको कि 5% डाउन विद नो क्रेडिट हिस्ट्री, ये प्राइमरी रेजिडेंस के लिए है जी। ये रेंटल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके। ये सिर्फ प्राइमरी रेजिडेंस के लिए है, न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। और इसमें अगर लेट्स से वाइफ के नाम आप लेना चाहते हैं तो इनकम तो जरूर होनी चाहिए। राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम पे एक घर लेते हैं, दूसरा घर जो है वाइफ के नाम पे लेते हैं, वो आप ले सकते हैं 5% डाउन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी इनकम जरूर होनी चाहिए। इनकम जरूर होनी या चाहिए। बेशक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो, अगर वो एज ए प्राइमरी रेजिडेंस लेते हैं ओके, तो वो ले सकते हैं विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री आल्सो विद द सेम Okay. गाइडलाइंस। Right. अगर वो उसको एज ए प्राइमरी रेजिडेंस लेते हैं तो राइट।
तो अदरवाइज अगर कोई बोलता है कि भी मैं तो ऑलरेडी मेरे पास तो घर है तो मैं दूसरा घर लेना चाहता हूँ, अगर वाइफ चलो एलिजिबल नहीं होती, क्या मैं दूसरा घर ले सकता हूँ? सेकंड होम लेना चाहता है कोई बंदा, तो उसकी क्या क्या ऑप्शंस होती है मॉर्गेज लेने के लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो है ऐसे भी हम क्लाइंट्स बहुत देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी ओन करते हैं घर जी, और वो दूसरा घर लेना चाहते हैं, और वो दूसरा घर जो है यू विल बी सरप्राइज टू नो कि विद एज लिटिल एज 5% डाउन पेमेंट भी ले सकते हैं। ओके, जैसे लेट से उन्होंने पहले ऑलरेडी घर लिया हुआ है जी, उस पर 5% डाउन पेमेंट उन्होंने किया, जी, इंश्योरेंस ली हुई है, इंश्योर्ड मॉर्गेज कहते हैं उसको, जो Right. लेस देन 20% डाउन पेमेंट करते हैं उसको हम इंश्योर्ड मॉर्गेज कहते हैं कि बैंक इंश्योरेंस लेता है वो। जी, तो जो सेकंड टाइम वो घर लेते हैं, ऑलरेडी एक इंश्योर्ड मॉर्गेज है, अब सेकंड टाइम लेना चाहते हैं तो वो भी 5% डाउन से ले सकते हैं अगर वो प्राइमरी रेजिडेंस है उनका, ओके, उनका वो खुद का रहने के लिए उनका घर। जी, तो वो ऑप्शन है, और उसमें ऐसा नहीं कि कई बार लोगों को लगता है कि ऐसे शायद ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़े, 20% करनी पड़े, पर ऐसा नहीं है। आप जो दूसरा घर है वो भी आप 5% डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं, इवन दो आपके पास जो एग्जिस्टिंग घर है वो भी अभी है उसकी मॉर्गेज। और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इट्स अ यूनिक प्रोग्राम विद बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, कि जो घर में आप रह रहे हो और आप नया घर लेना चाहते हो लेकिन एक घर में आप रह रहे हो, उसकी हम 100% रेंटल इनकम कंसिडर करते हैं। ओके, और ऐसा बहुत कम बैंक्स में आई हैवंट हर्ड अबाउट एनी अदर बैंक। ओके, तो बीएमओ है जो वो इस चीज में कंसीडर करता है कि जिस घर में आप रह रहे हो आप उस घर को अपग्रेड करना चाह रहे हो, दूसरे घर में मूव कर रहे हो, जिस घर में रह रहे हो उसकी रेंटल इनकम शो हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है उसने रेंट पे उस घर को देना और फिर वो आगे दूसरे घर में मूव होगा। हाँ, वो जो रेंटल इनकम है हमें उसके लिए रेंटल लीज एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता, तो दैट्स अनदर थिंग व्हिच बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल इज डूइंग कि हम अप्रेजर ओपिनियन से, एक अप्रेजर से हम ओपिनियन ले लेते हैं कि इस घर की रेंटल इनकम कितनी होगी मार्केट। वो हमें एक अपना एक रिपोर्ट देते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट, कि इस घर की जो मार्केट रेंट है एज पर मार्केट कंडीशंस ये इतना रेंट है, हम वो यूज कर लेते हैं उसको 100%। वी डोंट इवन नीड एनी रेंटल लीज एग्रीमेंट या कोई रेंट डिपॉजिट्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। राइट। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਵੇਕ ਪਹੁਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7802322573 7802322573। इस नंबर पे तुसी कॉल करके विवेक ओझा जी दे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो विवेक जी, अब अगर हम बात करें कि कोई बंदा प्लान कर रहा है कि मैंने घर लेना, तो मॉर्गेज की जो रिक्वायरमेंट्स है, मॉर्गेज ब्रोकर के साथ मिलना है या मॉर्गेज की तैयारी कब से करनी शुरू करनी चाहिए उसको? कई दफ़ा क्या होता है, लोग घर बुक कर लेते हैं, बुक करने के बाद फिर वो घर जब 1 महीने में 2 महीने में पोजेशन होता है तब वो सर्च करते हैं भी अब मॉर्गेज कहाँ से करूँ। तो कईयों को इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि उनके टाइम पे मॉर्गेज नहीं हो पाते। तो ये थोड़ा सा प्लान करें कि कब उनको प्लानिंग करनी शुरू कर लेनी चाहिए कि हाँ मुझे मॉर्गेज से डॉक्यूमेंटेशन या प्री अप्रूवल ले लेनी चाहिए, ये थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन हनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, कंडीशन रिमूवल डेट आ जाती है, डिपॉजिट दे देते हैं, उसके बाद पता चलता है मॉर्गेज नहीं हुई, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो देर से स्टार्ट करते हैं जी। ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए पहले। सबसे पहला काम जो है वो यही होना चाहिए कि अपना बैंक से प्री अप्रूवल मॉर्गेज लो जी, और उसमें जो है प्री अप्रूवल मॉर्गेज उस तरह की होनी चाहिए कि उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी से फ़ोन पे बात की और वो आपको बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको बोल देते हैं कि या ये आपका हो जाएगा बेस्ड ऑन जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है फ़ोन पे, जो भी आपने वर्बली दी है उसके बेसिस पे वो हो जाएगा। तो आप जाके अपना परचेस कॉन्ट्रैक्ट लिख लो एंड कंडीशन रिमूव करा लो। तो वो बहुत ही गलत एडवाइस है जी, और ऐसा बहुत हम देखने को मिल रहा है अभी, और फिर पीपल एंड अप पेइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में अपना डिपॉजिट भी लूज कर सकते हैं। जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि पहले प्री अप्रूवल अपनी मॉर्गेज अप्लाई करें जी। उसमें क्या होता है कि रेट भी होल्ड हो जाता है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको एक तो अप्रूवल मिल जाता है अमाउंट बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन, आप उसकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन की, क्रेडिट चेक होता है, उसके बेसिस पे प्री अप्रूवल मिलता है, और वो जो है वो दैट मेक्स यू मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट शॉपिंग अराउंड फॉर योर होम।
राइट। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। और उससे जो है आपका रेट होल्ड, जैसे मैंने बोला कि रेट होल्ड भी हो जाता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपने एक्चुअल प्री अप्रूवल मॉर्गेज किया है विद वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, तो बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई कंडीशन होती है, टर्म होती है, कोई ऐसा होता है कि आपको शायद एडिशनल डाउन पेमेंट चाहिए या कोई को साइनर चाहिए, तो वो उसी वक्त पता चल जाता है, पहले ही क्लियर हो जाता है clear सारा। हो जाता है। राइट। बजाय इसके कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाओ, क्योंकि अगर आप कंडीशन रिमूवल डेट पे कंडीशन रिमूव नहीं करते, राइट। तो एक आप वो घर लूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने डिपॉजिट पे कर दिया, कंडीशन रिमूव कर दी, और उसके बाद आपका अप्रूवल नहीं हुआ, और या उसमें डिले होता है, तो उसमें आपको और इंटरेस्ट चार्जेस या और भी कई आपके चार्जेस लग सकते हैं बिल्डर। इसमें सर क्या अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है? जैसे हम मोर्गेज अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कई बोल देते हैं कि विद इन 7 डेज ही हो जाएगा जी, 30 डेज लगते हैं, 40 डेज लगते हैं। क्या अप्रोक्सीमेट टाइम क्या लगता है कि मोर्गेज अप्रूवल करवाने के लिए डॉक्यूमेंट की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या क्या हमें बेसिक लाइक टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए इसको? इसका टाइम फ्रेम आई वुड से रीजनेबल जो एक होता है 5 to 7 बिजनेस डेज होता है जी। तो 5 to 7 बिजनेस डेज जो है एक नॉर्मल फाइल में लगता है आफ्टर अप्लाइंग द सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन की इन करनी पड़ती है जी। उसके बाद हमें वो डेटा कंपाइल करके उसको अंडरराइटर को भेजना पड़ता है जी। सो वी चेक द डेट फर्स्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, तो जी। उसको चेकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि उठा के जो आया भेज दिया जी। तो वी डू मेक श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर एज पर द बैंक्स रिक्वायरमेंट, ताकि आगे जाके कोई क्वेश्चनिंग ना हो ज़्यादा उसमें। अगर हम ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भेज देते हैं क्योंकि बाद में उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर उसमें डील खराब हो सकती है। तो वी रिव्यू द फाइल फर्स्ट, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, उसको प्रिपेयर करके अंडरराइटर को प्रेजेंट करते हैं। फिर अंडरराइटर्स भी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि उनके पास फाइल आई तो वही एक फाइल है, और भी कई फाइलों पे काम कर रहे होते हैं, ऑल ओवर कनाडा हमारे अंडरराइटर्स हैं। सो दैट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। लेकिन अगर वो कई कॉम्प्लेक्स डील्स होती हैं, जैसे उसमें ऑलरेडी जैसे किसी के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर उनके वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जी। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जी। तो वी हैव अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद द क्लाइंट फर्स्ट जी। उनसे फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या करते हैं और उनके क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो सकती है, सबकी डिफरेंट होती है। ਰਾਈਟ So we can do that. ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ गाइडलाइंस ले सकते हो। विवेक जी, कुछ मैसेज, कुछ लास्ट में कुछ है तो बहुत चीज़ें हैं, क्वेश्चन बहुत हैं, कुछ आपको लगता है कि ये बुलेट पॉइंट क्लाइंट्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं कि ये मॉर्गेज लेने के लिए ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं, बेशक न्यू इमिग्रेंट्स या जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, स्पेशली या वर्क परमिट पे हैं, या फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? हनी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अब मुझे 22 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। तो जो मैं क्लाइंट्स की जो हेल्प कर सकता हूँ, जो होम जो कि बाय करना चाहते हैं, उनको जो मैं एडवाइस दे सकता हूँ, ये सिर्फ मैं मॉर्गेज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लोगों को आके एक मॉर्गेज रेट दे दिया और फिर उनको सिर्फ मॉर्गेज करा दी। मैं उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी एक टाइम में न्यू इमिग्रेंट था, मैं भी एज ए न्यू इमिग्रेंट आया था जी। तो मैंने मुझे मालूम है शुरू में क्या स्ट्रगल्स होती हैं, उस वक्त मुझे कोई बताने वाला नहीं था जी, पर अब मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ और लोगों की हेल्प करने के लिए जो आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने जैसे पहले बताया कि क्लाइंट्स वहाँ से ही प्रिपेयर कर सकते हैं मॉर्गेज अपने फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, वहीं पे अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लें इंडिया में, तो 1-2 साल की अगर क्रेडिट हिस्ट्री उनकी बन जाती है तो वो उनके लिए यहाँ आसान हो जाता है। अदरवाइज उनको थोड़ा सा डिले हो सकता है, अगर 5% डाउन पेमेंट पे हो सकता है उनको, अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो फिर उनको रेंटल और बिल पेमेंट हिस्ट्री प्रोवाइड करनी पड़ती है 1 साल की। तो उस तरह की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, थोड़ा उनको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे इमिग्रेशन के थ्रू जो बिजनेसेस हैं जी, वो लोग ऐसे प्रमोट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं ऑलरेडी जी, वो डील कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ जो कि यहाँ
उनको हेल्प कर रहे हैं यहाँ लाने के लिए, तो उनको वहीं से वो ऐसा एडवाइस दे सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक्स आपका विवेक जी, जो आपने बहुत अच्छी गाइडेंस हमारे क्लाइंट्स को दी, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Facebook ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।